To this lecture on atoms, today we will discuss about the energy level diagram. हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा and we discussed the different types of spectral series in hydrogen atom, Lyman series, Balmer series, Boltzmann series, Paschen series, Front series, Brackett series, etc. series. और हमने ये भी देखा कि these series were emitted when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit. While deriving the expression for the energy of the electron in a Bohr's model, energy of electron in an orbit in a Bohr's model, you find that electron has different energy in different stationary orbits. It has minimum energy when the electron is in innermost orbit, and the maximum value of energy of electron is 0, and that value occurs only when electron is in n is equal to infinity orbit. That means when the electron is revolving around the nucleus in an orbit having infinity as the principal quantum number. Now, तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट एनर्जी है. नाउ एक डायग्राम हमारे पास है जिस डायग्राम से हम जो डायग्राम रिप्रेजेंट करेगी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. A diagram which represents the energy of electron in different stationary orbits, that diagram is called as energy level diagram. इसीलिए इसका नाम पड़ा energy level diagram. ये energy level diagram क्या काम करती है? ये represent करती है energy of electron in n is equal to 1 orbit, n is equal to 2 orbit, n is equal to 3 orbit, n is equal to 4 orbit, n is equal to 5 orbit on a suitable scale, on a suitable scale. अब इस डायग्राम में हम क्या करते हैं काम? इस डायग्राम में, यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा इधर, इस डायग्राम में बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है दे रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इस डायग्राम में आपको दो किस्म के लाइनें आएंगी. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, these horizontal lines represent the energy of electron in different stationary orbits drawn on a suitable scale. तो इस डायग्राम में आपको एक और चीज मिलेगा, आपको वर्टिकल लाइंस मिलेंगी. क्या मिलेंगे? वर्टिकल लाइंस. These vertical lines represent the transition, jumps of electron from one orbit to another orbit. ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इसमें दो किस्म की लाइनें हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करेंगे काम? They will represent energy of the electron in different stationary orbits. While as जो इसमें vertical lines होंगी, these vertical lines will represent the transitions of electron. Transition means jumps of electron from one orbit to another, from higher orbits to lower orbits. ठीक है ना? Now कैसे हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रा करेंगे? First we should know the energy of electron in different stationary orbits. हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा, हमने सुना था कि energy of electron in the nth orbit is given by En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square. This was the expression for energy of electron in the nth stationary orbit. In the nth stationary state, these orbits are also called as energy states. ये जो ऑर्बिट्स है इनको हम क्या दूसरा नाम कहते हैं? एनर्जी स्टेट्स. तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती है minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. वेयर n क्या आपका है? दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नंबर 1, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जो n है, n होता है 1 के बराबर. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो n होता है वो क्या बेटा होता है? 1 के बराबर. तो मैं n के बदले 1 लिखूंगा, ये बनेगा E1 is equal to minus 13.6 divided by 1 square. वो निकलेगा minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो ऑर्बिट है इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. वो स्टेट जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी होगी उस स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट. लिहाजा मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को होती है किस स्टेट में, किस ऑर्बिट में? n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में. लिहाजा उस स्टेट को हम फिजिक्स में कहते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट. वो स्टेट जो होता है वो सबसे स्टेबल स्टेट होता है एटम का. ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एटम. क्योंकि
वो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को सबसे मिनिमम एनर्जी होती है। जब किसी चीज को सबसे ज्यादा मिनिमम एनर्जी होती है, उस वक्त वो चीज जो होता है वो किस इक्विलिब्रियम में होता है, शाबाश, वो किस स्टेट में होता है, स्टेबल स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट जो है, दिस इज द स्टेबल स्टेट, ठीक है ना। अब नंबर सेकंड, फॉर सेकंड ऑर्बिट जो दूसरा ऑर्बिट होगा, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है ना। एनर्जी निकालो भाई, ये निकलेगा E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ये निकलेगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सिंपलीफाई करो, ये निकलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये निकला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऑर्बिट में कितना, -13.6, दूसरे में कितना, -13.4। तीसरा, फॉर थर्ड ऑर्बिट जो आपका तीसरा ऑर्बिट है, n है, उसके लिए कितना, 3, ठीक है ना। एनर्जी निकालो थर्ड ऑर्बिट के लिए, शाबाश, ये निकलेगा E3 इज इक्वल टू, शाबाश, -13.6 डिवाइडेड बाय 3 3s आर 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 3 स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है ना। इसको करो ना, 9 1 हो गया 9, वहां से कितना है 4, 9 5 क्या हो गया 45, ये है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ठीक है। नंबर 4, फॉर फोर्थ ऑर्बिट जो चौथा ऑर्बिट होगा, चौथे ऑर्बिट के लिए जो n होगा वो होगा 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो एनर्जी निकालो फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होगी, वो होगी E4 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, ठीक है, वो होगी -13.6 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना। जरा इसको करो कैलकुलेट, -13.6 -0.886 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो पांचवें में करो, शाबाश। फॉर फिफ्थ ऑर्बिट जो पांचवा ऑर्बिट होगा, उसके लिए n जो है वो है 5, n जो है वो कितना है 5। तो E5 निकालो, शाबाश, E5 हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, वो हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना। -13.6 डिवाइडेड बाय 25, बोलो कितना होगा, वो बोलो कितना है, -0. शाबाश, 54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम E इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे, हम लेंगे फॉर, यहां लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट या फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट, ठीक है ना। E इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, शाबाश, E इन्फिनिटी होगा बराबर, शाबाश, -13.6 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी जब इलेक्ट्रॉन होगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट में या n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में, उस वक्त उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना होता है बेटा, वो होता है 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकॉज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ energy which an electron possesses is 0, because after n is equal to infinity the electron will come out of the atom. After n is equal to infinity, जब ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है it is bound to the nucleus, नेगेटिव साइन बोलता है इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड। once it becomes 0, once the energy becomes 0, the electron remains no longer bound with the nucleus, no longer bound to the nucleus. It will come out of the orbit and become a free electron. So electron has a maximum value of energy, and that maximum value of energy of electron, that is 0, ठीक है ना। Now let us draw these different values of energy on this energy level diagram. इसमें हम कैसे ड्रा करते हैं, यहां से हम एनर्जी लेंगे, इस साइड में हम एनर्जी लेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहां देखो पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए n जो है वो है 1। तो यहां पर जो यहां एनर्जी होगी वो कितनी होगी, शाबाश, -13.6। ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, यहां पर क्या एनर्जी है, n इज इक्वल टू ऑर्बिट में, शाबाश, -3.4 ये है, ठीक है ना। इसके बाद n इज इक्वल टू 3, शाबाश, n इज इक्वल टू 3, बोलो उसके लिए क्या है, शाबाश, उसके लिए एनर्जी क्या है, शाबाश, -1.5। उसके लिए बच्चों n इज इक्वल टू 4, बोलो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या है, शाबाश, -0.886, -0.85,
या 8685, शाबाश, कोई बात नहीं, माइनस 0.85। उसके बाद n इज इक्वल टू 5, वहां पर क्या है शाबाश, माइनस 0.54, तो नजदीक होगी इसको, ये है n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4 जो है ये नजदीक है, क्योंकि यहां पर एनर्जी की थोड़ी डिफरेंस है, ये है माइनस 0.8, ये है माइनस 0.5, है ना, माइनस 0.5 क्या 54, ठीक है ना। जरा n इज इक्वल टू 6 का निकालो, क्या आएगा, वो आएगा माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 36, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 36 कितना आएगा वो, शाबाश शाबाश, n इज इक्वल टू 6 का देखो फटाफट, देखो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 का देखो फटाफट, n इज इक्वल टू 6 का आएगा शाबाश माइनस 0.37, माइनस शाबाश माइनस 0.37, देखो n इज इक्वल टू 7 और नजदीक होगा इसको, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 8 और नजदीक होगा, n इज इक्वल टू 9 और नजदीक होगा, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी और नजदीक होगा। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी वो होगी 0, वो होगी 0। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, this is the energy level diagram in which we have represented different values of energy of electron in the different stationary orbits। n is equal to 1 state में क्या एनर्जी है, माइनस 13.6, n is equal to 2 ऑर्बिट में क्या है, माइनस, these horizontal lines they represent energy of electron in the different stationary orbits। This line represents minus 13.6 electron volt, this line represents minus 3.4, this represents minus 1.5, these different lines they are called energy levels। What are they called as? Energy levels। See here, now when an electron will jump from n is equal to 2 orbit to n is equal to 1 orbit, which kind of spectral series is emitted? Lyman series, when the electron jumps and in the first orbit, so what kind of series will be that? That will be Lyman series, that will be Lyman series, that will be Lyman series। सर तो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज, शाबाश, थर्ड से फर्स्ट ये लाइमन ही है, शाबाश, फोर्थ से फर्स्ट, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, फिफ्थ से सिक्स, शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश, सेवन से शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। So these vertical lines they represent what? They represent the jump of electron from higher energy orbit to lower energy orbits। So these horizontal lines represent we can say they represent the transition of electron from one orbit to another orbit। So this series is Lyman series, Lyman series, shabash, this series is what? Lyman series। Again, when the electron jumps will end in the second orbit, what will be the series, shabash? That will be the Balmer series, Balmer series, very nice, shabash, this is the Balmer series। ये जो बच्चों है ये Balmer series है, very good, electronic jumps and in the second orbit, and this is the Balmer series। This Lyman series is in ultraviolet region, while as Balmer series in what? It is in visible region। This is Balmer series। आगे जाएंगे हम, शाबाश, n is equal to 3 पे चलो, शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक जंप्स थर्ड ऑर्बिट में जब थर्ड ऑर्बिट पे खत्म होंगे तो वो कौन सी सीरीज होगी, शाबाश, बोलो बेटा, शाबाश, वो होगी पास्चन सीरीज, दैट विल बी इन पास्चन सीरीज। दिस इज द पास्चन सीरीज, पास्चन, दिस इज पास्चन सीरीज। तो यहां पर आपने देखा जो ये वर्टिकल एरोज जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जंप्स, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। तो ये कौन सी होगी बच्चों, शाबाश, ये कौन सी होगी, ये होगी भाई बच्चों जब n is equal to 4 ऑर्बिट में जंप्स खत्म होंगे, दिस विल बी व्हाट सीरीज, शाबाश, दिस विल बी ब्रैकेट, है ना, दिस विल बी ब्रैकेट सीरीज, दिस इज ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद यहां पर जो खत्म होगी, शाबाश बेटो, ये कौन सी होगी, शाबाश, ये होगी फंड सीरीज, ठीक है ना, ये क्या होगी, फंड सीरीज। These are the different spectral series which are represented by this energy level diagram। ठीक है ना, आया ना समझ आपको। इससे एक तो हमने एनर्जी रिप्रेजेंट की, डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन को क्या है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में एनर्जी, एक तो वो एनर्जी रिप्रेजेंट की, दूसरे तो इस डायग्राम से हमने मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज भी दिखाई, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कह रही है। पहला चीज जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कंटिन्यूअस वैल्यूज है कि डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज? इट हैज डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज, -13.6, -3.4। इट मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। पहला जो आपको प्रूव हो गया वो आपको प्रूव हो गया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है यहाँ पर क्वांटाइज्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है इसको कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं है।
कंटिन्यूअस वैल्यूज ऐसे होते, -13.6 के बाद आता -13.5, -13.4, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, 10 नहीं एग्जिस्ट हो रहा, तो -3.4 पे जंप हो गए, वहां वैल्यू हो गया, उसके बाद -1.5, उसके बाद -0.05, उसके बाद -0.54, उसके बाद -0.37 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम जाएंगे, वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बचा, 0। ठीक है ना। तो ये है पहला चीज कि इस डायग्राम से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो है क्वांटाइज्ड। नंबर सेकंड, जब हम n को इंक्रीज करेंगे, देखो -13.6 छोटा है, -3.4 क्या इससे बड़ा, -1.5 क्या इससे बड़ा। इसका मतलब है एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मींस ये कहां जाती है, more positive. In other words, the energy of electron increases. As n increases, the energy of electron becomes less negative. And in other words, it means that the energy of electron increases and attains a maximum value equal to 0 when n is equal to, when electron is in what orbit? N is equal to infinity orbit. ठीक है ना, समझ आया ना आपको, समझ आया ना, शाबाश। Now, अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जाएगा, इतना वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दैट विल रिमेन लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। And at n is equal to infinity, the energy of electron becomes 0, and at that stage the electron remains no longer bound to the atom, but it will come out of its shell, it will come out of the orbit and becomes what? Becomes a free electron. That means जब n is equal to infinity आएगा, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर आएगा, वो एटम से बाहर, that will get knocked out from the atom। ठीक है ना, उस स्टेज पे जो हमारा एटम है that will get ionized। ठीक है ना, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, एंड एट दैट स्टेज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स नो लॉन्गर बाउंड टू द एटम। ठीक है ना। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है ना, दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। बोर्स एटॉमिक मॉडल, देखो बच्चों, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, it fails to explain, number one, the structure of complex atoms. It fails to explain the structure of complex atoms. Complex atoms कौन होते हैं? That is the atoms containing more than one electron. More than one electron. यार ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, नो डाउट इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी एंड द स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन, बट व्हाट हैपेंस, दिस बोर्स मॉडल फेल्स जब हम कॉम्प्लेक्स एटम्स की बात करेंगे, वो एटम्स जिन एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, तो हाइड्रोजन इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमारे पास ड्यूट्रॉन है H12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 1, सो ड्यूट्रॉन उसको भी सक्सेसफुली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है हम इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ, बाय यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसका स्ट्रक्चर। या हमारे पास ट्राइटियम होगा H13, यहां पर भी प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इजीली बोर्स एटॉमिक मॉडल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये होगा हीलियम, हीलियम के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम इस हीलियम को सिंगली आयनाइज करेंगे, सिंगली आयनाइज करने से इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। देखो पहले हीलियम है He24, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने को हम कहते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ नॉकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, दैट्स कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। जब हम एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर देंगे तो ये बनेगा हीलियम आयन, तो ये है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। क्यों है सिंगली आयोनाइज्ड? क्योंकि यहां पर हमने खाली एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इससे। ठीक है ना, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना रहा 1। अगर डबली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है ना, वो होता है अल्फा पार्टिकल, लेकिन अगर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मींस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अगर हमारे पास ये होगा सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, पहले ये देखिए, ये नियॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, कितने रहेंगे, शाबाश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अब रहेंगे 8। कैन वी एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर? वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक। यही तो आया था, यही तो आया था, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या क्या आया था क्वेश्चन, शाबाश, यही तो आया था कल नीट में। Which of the following Bohr's model is not valid? in which of the following Bohr's model is not valid? पहला बताओ, Helium. Helium. Ionized helium. क्या है, singly ionized helium. Yes, it contains only 1 electron, so it can be explained on the basis of Bohr's atomic model. दूसरा, Deuterium. deuterium. Yes, deuterium contains only 1 electron, so we can explain it on the basis of Bohr's atomic model. Then Neon. नियॉन, तो इसमें सीधे नियॉन आएगा, सीधे तो यही आया था, पहला फेलियर आया था, सीधे नीट में आया था ये पहला फेलियर, ठीक है। नाउ ये पहला फेलियर जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का है, it fails to explain the structure of complex atoms, that means atoms containing more than 1 electron. दूसरा, fails to explain fine structure of spectral lines, fine structure of spectral lines। देखो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, जब हम एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दैट सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइन स्ट्रक्चर। जब हम एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को, ठीक है ना, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो इट इज सीन दैट दिस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, that is called as fine structure. Bohr's atomic model cannot explain this fine structure of spectral lines. Number third, Bohr's atomic model fails to explain the intensity of spectral lines. Why some spectral lines are more intense and some are less intense. Bohr's atomic model fails to explain this. That means Bohr's atomic model does not account for the intensity of spectral lines. तीसरा failure, Bohr's atomic model जो है, it cannot explain why the orbits are circular when elliptical orbits are also possible. हमारे जो ऑर्बिट्स यहाँ पर है, these are Bohr says कि electron revolves around the nucleus only in certain permitted orbits, but Bohr's मॉडल में जो ऑर्बिट्स लेते हैं वो सर्कुलर होते हैं। However, there can be also elliptical orbits. Bohr cannot explain this, why the orbits are circular and why not they are elliptical. इसके बाद अगर हम एक स्पेक्ट्रल लाइन को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट। बोर्स मॉडल जो है, बोर्स मॉडल फेल हो गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ज़ीमैन इफेक्ट, बिकॉज ज़ीमैन इफेक्ट में क्या होता है, जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, इनटू मोर लाइंस। तो बोर्स मॉडल जो है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन दिस ज़ीमैन इफेक्ट। तीसरा, अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वहां पर भी ये स्प्लिट होती है, उस इफेक्ट को कहते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। बोर फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है sometimes they behave as particles, sometimes they behave as wave, because matter also has a dual nature as per Lucy de Broglie, ठीक है ना। तो sometimes electron will behave as a wave and sometimes the electron will behave as a particle. Wave nature of electron was explained by Davishan and Germer, it was explained by Compton, but Bohr failed to explain why these electrons have sometimes what nature? Wave nature. These were the some of the limitations of Bohr's atomic model. This completes this limitations of Bohr's atomic model. तो excitation energy क्या करो? Excitation energy. पहला हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। देखो बच्चों, जो n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है ना, इट इज द स्टेबल स्टेट, ठीक है ना। जो n इज इक्वल टू 2 स्टेट है, इसको कहते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये हायर एनर्जी स्टेट जो है, ये एक्साइटेड स्टेट्स है। दीज इन एक्साइटेड स्टेट्स में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये थोड़े टाइम के लिए रहता है वहां पर, क्योंकि उन स्टेट्स में जो है, दीज आर अनस्टेबल स्टेट्स,
तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 10⁻⁹ सेकंड्स ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस जंप करता है किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना? नाउ एक्साइटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, ग्राउंड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उठाना है और इसको लेना है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में। जो एनर्जी मुझे लगेगी उसके लिए, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। क्यों एनर्जी लगेगी? क्योंकि यहां पर एनर्जी, इस स्टेट में एनर्जी कम है, इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को मुझे एनर्जी देनी है। जिस एनर्जी, जो इसको एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन फिर जंप करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना? उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन from ground state to any of the higher energy states is called as what? Excitation energy. ठीक है ना? Now, जरा हम यहां कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लगेगी in order that it may jump from ground state n is equal to 1 state to n is equal to 2 state, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लगेगी जंप करने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर यहां पर आपकी एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सपोज आपकी एनर्जी है E2, ग्राउंड स्टेट में आपकी एनर्जी है E1, तो कितनी एनर्जी हमें लगेगी? E2 माइनस E1। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी E, वो होगी E2 माइनस E1। किस एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए हम पढ़ रहे हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ground state, यानी n is equal to 1 state to first excited state, that means n is equal to 2 state, that is called as what? First excitation energy of hydrogen atom. Suppose फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी एनर्जी में E2 से डिनोट करूंगा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में E1 से डिनोट करूंगा, तब कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जरूरत होगी? उसको होगी E2 माइनस, जरा निकालोगे तो E हो गया बराबर E2 कितना है शाबाश? -3.4 है ना? इस स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है? -3.4 माइनस इंटू E1 ग्राउंड स्टेट है -13.6। तो इसको कैलकुलेट करो, दिस इज E इज इक्वल टू -3.4 माइनस माइनस हो गया +13.6। कैलकुलेट करो भाई, वो कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the first excitation energy of electron in a hydrogen atom is 10.2 electron volt. When we give electron this such energy, such amount of energy, electron can easily jump from first orbit to second orbit, ground state to first excited state. जरा second excitation energy निकालो भाई। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होगा भाई? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट। तो वो होगा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1। ठीक है? n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट में क्या एनर्जी है बच्चा? -1.5। ये है -1.5 माइनस इंटू -13.6। ठीक है ना? ठीक है ना? वो कितना बनेगा भाई? शाबाश, वो बनेगा -1.5 प्लस 13.6। कैलकुलेट करो भाई। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, ये खुद ब खुद एक्साइट करेगा, किस ऑर्बिट में जाएगा? n is equal to 3 ऑर्बिट में। In this way you can calculate third excitation energy, fourth excitation energy, so on and so on. ठीक है ना? Now यहां पर मैं डिफाइन करूंगा excitation potential। मैंने एक्साइटेशन एनर्जी डिफाइन की, अब मैं यहां पर डिफाइन करूंगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। याद रखो बेटा नजर, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। बच्चा यहां देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी किसके बराबर है? शाबाश बताओ। माइनस, शाबाश, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज वोल्ट। वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चार्ज बाहर लिखूंगा, मैं लिखूंगा E इंटू 10.2 वोल्ट। ठीक है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको कितना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया? 10.2। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
यानी वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल, द पोटेंशियल through which an electron is accelerated, through which an electron is accelerated, so that it may go from ground state to first excited state. That is called as so that it may go from ground state to any of the excited states. That potential is called as what? Excitation potential. जैसे आपने एक्साइटेशन एनर्जी बताई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट्स, दैट एनर्जी वाज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी. सिमिलरली द पोटेंशियल थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कैन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट कैन गो टू एनी ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट, एनी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल्स, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्साइटेशन पोटेंशियल. नाउ द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, उससे इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? ये जाएगा फ्रॉम फर्स्ट n is equal to 1 ऑर्बिट टू n is equal to 2 ऑर्बिट. वो कितना होगा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल? 10.2 वोल्ट. ठीक है ना. यहां पर देखो एक्साइटेशन एनर्जी है E है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इनटू व्हाट इज पोटेंशियल? दिस इज 10.2 वोल्ट. तो व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल? फर्स्ट एक्साइटेशन, जब हम इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट पोटेंशियल देंगे, उससे एक्सेलरेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेगा फ्रॉम n is equal to 1 ऑर्बिट टू n is equal to 2 ऑर्बिट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है ना. शाबाश. जरा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? सेकंड एक्साइटेशन कितना होगा? 12.1 वोल्ट. ठीक है ना. थर्ड आएगा आपको, फोर्थ आएगा आपको, सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है ना. दिस वाज एक्साइटेशन पोटेंशियल. नाउ लेट अस डिस्कस आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी. शाबाश. आयोनाइजेशन एनर्जी. देखो बच्चों, मैंने आपको बताया वो एनर्जी जो हमें जरूरत होगी in order to knock an electron completely out of the atom. That energy is called as ionization energy. Energy required to knock out an electron from an atom is called what? Ionization energy. ठीक है ना. Ionization energy, जिससे एटम को, वो एनर्जी जिससे हम एटम को आयन बनाएंगे, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. एटम कैसे आयन बनेगा? जब हम उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे. प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर बाउंड चार्जेस, दे आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दे विल नॉट कम आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है ना. सो ओनली वे टू मेक एन एटम एन आयन इज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट. ठीक है ना. वो प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रॉन को नॉक करते हैं एटम से, उस प्रोसेस को कहते हैं एनर्जी, आयोनाइजेशन. तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट्स कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन तब नॉक होगा फ्रॉम द एटम जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब नेगेटिव नहीं होगी? किस स्टेट में? n is equal to 1, n is equal to infinity state में. तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लगेगी इन ऑर्डर टू टेक इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी n is equal to 1 state to n is equal to infinite state, that energy is called as what? Ionization energy. Because when the electron will reach to n is equal to infinity state, it will no longer remain bound to the nucleus. It will come out of the orbit and become a free electron. That means it will come out of the atom. तो दूसरी डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 state to n is equal to infinite state. ठीक है ना. दैट इज infinity state, that is called as ionization energy. जरा इसको कैलकुलेट करो. This E will be equal to E ionization. E ionization will be equal to E infinity minus E1. E infinity minus E1. E ionization. E infinity क्या है? Energy of electron in what state? n is equal to infinity state. E1 क्या है? Energy of electron in what state? n is equal to 1 state, ground state. Okay. ये हो गया E ionization हो गया बराबर E infinity बच्चा है 0. ठीक है ना. E infinity क्या है? 0 माइनस इंटू माइनस 13.6. ये बनेगा E ionization is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये याद रखना जबानी ये वैल्यू. This is the ionization energy of hydrogen. What is the ionization energy of hydrogen? 13.6 electron volt. Because with this energy, the electron can be taken from ground state to n is equal to infinity state. तो यहाँ पर ऐसे ही हम potential define करेंगे. That will be equal to ionization potential. What is the ionization potential? वो potential जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे so that it may go from n is equal to 1 state यानी ground state to n is equal to infinity state. That is called as ionization potential. What is the ionization potential for hydrogen atom? शाबाश. This will be शाबाश 13.6 volt.
जब हम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में कितना पोटेंशियल दे देंगे, कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे, 13.6 वोल्ट से, वो इलेक्ट्रॉन जो है that remains no longer bound to the nucleus, that remains no longer inside the atom, that will come outside the atom and will become a free electron. ठीक है ना? This completes your atoms. ठीक है ना?